Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata from Layal Public School. I am your social science teacher. So class, today we all are going to continue our chapter number 5, major domains of the earth from your textbook, from your geography textbook. In our last class, we started this chapter. We talked about three main components of our earth. After that, we talked about three continents. ठीक है, 7 continents are there: Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, and Antarctica. These are the 7 continents of our earth. Now our today's topic is hydrosphere. Hydrosphere, this is the second main component of our earth. Okay, so the earth is also called the blue planet. Why it is called the blue planet? Because more than 71% of the earth is covered with water. More than 71% of our earth is covered with water, and that's why, and it is seen as blue from the universe. ठीक है, it is seen as blue color का दिखता है universe से, and it is, that's why it is known as blue planet. Okay, hydrosphere consists of water in all its form. ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है? हर तरीके से, जो ग्लेशियर्स के फॉर्म में, वाटर रिवर्स के फॉर्म में, सी ओशियन के फॉर्म में क्या है, आपका वाटर प्रेजेंट रहता है. सो 97.5% ऑफ आवर earth is covered with water, and as running water in oceans and rivers and in lakes, ice in glaciers, underground water vapor in atmosphere, all comprises the hydrosphere. ये सब क्या है? हाइड्रोस्फीयर है. चाहे वो लेक्स के फॉर्म में हो, ग्लेशियर्स के फॉर्म में हो, ओशियंस के फॉर्म में हो, रिवर्स के फॉर्म में हो, एटमॉस्फेयर में हो, वेपर के फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हैं कि ग्राउंड वाटर के फॉर्म में हो. ठीक है, ये सब हाइड्रोस्फीयर है. More than 97% of the Earth's water is found in ocean and is too salty for human use. A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or underground, and a very small percentage is available as fresh water for human consumption. 97, just look at this pie chart. 97.5% water is in oceans. After that, only 2.5% water, fresh water is available for our consumption. We cannot use the ocean water for our consumption, for human consumption, because it is too salty for the consumption. We cannot use that water. Okay, so a very small percentage is available as fresh water for human beings, and fresh water में भी जो है ग्लेशियर्स के फॉर्म में, अंडरग्राउंड वाटर लेक्स रिवर्स के फॉर्म में है, और जो आपका मोर देन 1% आपका है वो वाटर आपके ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, आइस शीट्स के फॉर्म में है फ्रेश वाटर. ठीक है, तो लेस देन 1% वाटर इज अवेलेबल फॉर अस in the form of rivers, lakes, underground water, atmosphere, etc. Okay, so just hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. Why? Because 97% of our water, 97% of the water available in our earth is salty, and it is not fit for consuming. Okay, so now just look at this boxes. This is the comparative size of the continents. With the help of the boxes, small squares, we can able to understand how small and how big any planet, any continent will be, any continent is. Now just look at this. Asia, it is the largest continent in the world. So many blocks are there. After that, Africa, then North America, South America, Europe, Antarctica, and then Australia. Okay, so which is the largest continent? Asia is the largest continent. Which is larger, Europe or Australia? Europe is the largest continent. Okay, so now oceans. Oceans, obviously it comes under hydrosphere. Oceans are the major part of hydrosphere. They are all interconnected. All the oceans are interconnected. Whatever the blue portions you are looking at, this figure 5.3, this is representing
the oceans or seas, ठीक है, and all these as you can see all these oceans are interconnected with each other. देखो एक दूसरे से interconnected है. How they are interconnected? Just look at this. यहाँ पे आपका Atlantic Ocean, ये एंटार्क्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन है, यहाँ आर्टिक है, यहाँ पैसिफिक है, यहाँ पैसिफिक है, यहाँ इंडियन ओशन है, यहाँ सदर्न ओशन है. तो ऑल दीज ओशंस आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. ओके, so the ocean water are always moving. The three chief movements of ocean waters are the waves, tides and the ocean currents. Ocean water are always moving, they always circulate, and the circulation, the different circulation of ocean water are waves, tides and ocean currents. If you ever visited the beach, or you have seen the scenes of beach in any of the movie, you can see कि जो tide, जो पानी है वो बार बार आता है फिर जाता है, बार बार आता है और फिर सी फॉर्म बनाता है और फिर वो चला जाता है. तो दे आर वेव्स, ठीक है. टाइड्स होते हैं, ओशन करंट्स होते हैं. तो दिस सर्कुलेशन इज नोन, these are the three main circulation, three main movements of the ocean water. The five major oceans are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean. These are the five main oceans. These are the five oceans of the world. Just look at this figure. Just look at this figure. Figure 5.1, page 31. This is Pacific Ocean. This is Pacific Ocean. As you all know, our Earth is sphere in shape. It is just like a ball. So they are interconnected. We are representing our Earth in a flat surface. That's why we are looking at कि यहाँ पे भी Pacific है, यहाँ पे भी Pacific है. But these are the same. Atlantic Ocean, Southern Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean. These are the five main oceans of the world. Pacific, Atlantic and Arctic, Indian and Southern Ocean. So the Pacific Ocean is the largest ocean. It is spread over 1/3 of the Earth. Mariana Trench, the deepest part of the Earth, lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in shape. The Pacific Ocean, it is the largest ocean in the world, and it is spread over 1/3 of the Earth. 1/3 Earth हमारा जो है covered है Pacific Ocean से. Mariana Trench, ये deepest part है Earth का, Mariana Trench, and it lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in shape. Circular shape में है. Asia, Australia, North and South America surrounded it. So after that, Atlantic Ocean. It is the second largest ocean in the world, and it is S-shaped. It is flanked by the North and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. The irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. Now, Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world, and it is S-shaped. Now, it is S-shaped, and इसके अगर वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो हमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका देखने को मिलता है. अभी जस्ट लुक एट द फिगर. Just look at this figure. Yes. Now this is Atlantic Ocean. ये देखिए, ये S फॉर्मेशन होती है. देखो ये आपके अटलांटिक ओशन है. ये देखो ये एस फॉर्म बना रहा है ना. इट इज एस शेप. वेस्ट डायरेक्शन में देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, और ईस्ट में देखेंगे तो यूरोप और अफ्रीका है. बहुत सारे हार्बर्स और नेचुरल हार्बर्स वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. अगर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स हमें देखने को मिलता है, और नेविगेशन के लिए और ट्रेड के लिए काफी फेमस है ये ओशन. काफी बिजिएस्ट ओशन ये माना जाता है. ओके, नाउ
The irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbor. Irregular and indented coastline. Indented का मतलब क्या होता है? Indented का मतलब to set the margin. So many margins are there. बहुत सारे margins हमें देखने को मिलते हैं. एंड कॉमर्स के व्यू पॉइंट से, ट्रेड के व्यू पॉइंट से ये काफी बिजिएस्ट ओशियन है. नेक्स्ट इज इंडियन ओशियन. इट इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज इंडिया. इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन दैट इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, इंडिया. व्हाई? बिकॉज the biggest coastline of Indian Ocean lies in India. That's why it is named after the country India. The shape of ocean is almost triangular. In the north it is bound by Asia, in the west by Africa, and in the east by Australia. Again, if we look at the map of the world, जो कौन सा शेप है? ट्रायंगुलर शेप है. इफ यू लुक एट द मैप वेरी केयरफुली, इट इज जस्ट लाइक अ ट्रायंगुलर शेप. ये देखो ये ट्रायंगुलर शेप में है, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में है आपका ये. ठीक है. अब देखिए नॉर्थ में इंडिया है. ठीक है. एशिया से ये लाई कर रहा है. यहाँ पे वेस्ट में अफ्रीका है, और ईस्ट में हम देखते हैं कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है. ईस्ट वेस्ट में अफ्रीका, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, एंड नॉर्थ में एशिया. ठीक है. आफ्टर दैट हमारा कौन सा ओशियन है? जस्ट give me a second. Yes, the Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northwards to 60 degree south latitude. जो Southern Ocean है ये एंटार्क्टिका के सराउंडिंग्स में है, एंड नॉर्थवर्ड तक 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक ये क्या है? स्ट्रेच्ड है. नेक्स्ट इज आर्टिक ओशियन. इट इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल. जो आर्टिक नॉर्थ पोल है वहां के सराउंडिंग्स में है. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. It is located. अब जो आर्टिक ओशियन है वो आर्टिक सर्कल के सराउंडिंग में है, नॉर्थ पोल के सराउंडिंग में है. पैसिफिक ओशियन से ये कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है? जस्ट लुक एट द मैप अगेन. देखिए पैसिफिक ओशियन से यहाँ से कनेक्टेड है, और पैसिफिक ओशियन से ये देखो यहाँ पे जो ये कनेक्शन है ना, ये इस छोटी सी स्ट्रेच को हम क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं. So these are all about the oceans we have. Now next point is atmosphere. Next important component of the earth is atmosphere. The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun's rays. So in whatever atmosphere we are living at, it is a thin blanket of air, and it is very important for our planet, because जो भी sun की rays आती है, sun की harmful rays से जो ये हमें protect करके रखती है. ठीक है. जो ये thin layers है. So the atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometer. If you look at this picture which is mentioned here, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 1600 किलोमीटर्स तक का जो है एक लेयर बनी हुई है. ठीक है. हाइट, एटमॉस्फेयर की हाइट है. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. कुछ उनके composition के अकॉर्डिंग की कौन-कौन सी गैसेस अवेलेबल है. ठीक है. उनका टेम्परेचर कितना रहता है, या फिर उनका कॉम्पोजिशन कैसा है, या फिर और दूसरी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने जो है इसको डिवाइड कर रखा है. सो दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर. नाउ अर्थ सरफेस में ये ट्रोपोस्फेयर जो है, अर्थ सरफेस में हमें देखने को मिलता है, ट्रोपोस्फेयर से ये स्टार्ट होता है.
ये देखो, ये हम जो जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं ना, ये है आपकी ट्रोपोस्फेयर। ये कौन सी लेयर है? हम जहां अर्थ में रह रहे हैं ये ट्रोपोस्फेयर है। देन द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड है, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। देखिए ये जितने भी एरोप्लेन वगैरह है या फिर आपके जो फ्री फॉल वगैरह होते हैं, ये सब आपका ट्रोपोस्फेयर की लेयर में है। देन स्ट्रेटोस्फेयर हो गया आपका, ठीक है, मेसोस्फेयर हो गया रॉकेट्स वगैरह के लिए, एग्जॉस्ट थर्मोस्फेयर हो गया, फिर एक्सोस्फेयर आपका सैटेलाइट्स। The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean dry air. जो एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन है, कौन कौन सी एयर है एटमॉस्फेयर में? आपकी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है, एंड 99% आपका जो एयर है, जो आपकी गैसेस है, वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की है। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेस 1% बाय वॉल्यूम। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, ये 1% है हमारे एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ, व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑक्सीजन है इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ, ठीक है। हम कौन सी एयर को इनहेल करते हैं? हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लिविंग। नाइट्रोजन लिविंग बींग्स को ग्रो करने में काफी हेल्प करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट इज इंपॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही कम है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है, 1% से भी कम है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है बिकॉज जो भी हीट रेडिएट होती है वो एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड। thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लैनेट को थोड़ा वार्म रखता है, और जो ट्रीज वगैरह हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, उनको ग्रो करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। सो it is also a very important layer gas of the एटमॉस्फेयर। बट एक्सीड करने से जो ग्लोबल वार्मिंग है बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। देखो आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी रहने लगी है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई। So the density means thickness. The density of the atmosphere varies with height. जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती रहती है, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, थिकनेस भी क्या है, इंक्रीज होती रहती है। It is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. Sea level पे सबसे ज्यादा होता है डेंसिटी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होने लग जाता है, वैसे वैसे जो है डिक्रीज होने लग जाता है। सो अब देखो जब भी क्लाइंबर्स जो है, जो माउंटेन पीक्स वगैरह चढ़ते हैं, उनको काफी प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग करने में, because of the decrease in the density of air की डेंसिटी जो है बहुत कम होने लग जाती है, इसलिए क्लाइंबर्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes. Altitudes means height होता है, जो हाई हाइट की, जैसे माउंटेन पीक्स वगैरह होते हैं, वहां पे उन्हें सिलेंडर्स को, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जब भी जरूरत होती है तो वो ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड्स। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. अब टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है, मतलब ठंड ज्यादा पड़ने लग जाती है। The atmosphere exerts pressure on the earth. एटमॉस्फेयर है ना, अर्थ पे एक प्रेशर जो है एक्सर्ट करता है, पुश करता है, और अर्थ में डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट आपके एयर प्रेशर हम फील करते हैं। कहीं पे हाई प्रेशर होता है, कहीं पे लो प्रेशर होता है, ठीक है। और एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो एयर की मूवमेंट होती है ना, वो कैसे होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर से होती है। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। आप सबको अर्थ के 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स के बारे में
लैटिट्यूड्स के बारे में पता है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इक्वेटर जो है यहाँ से क्या होगा आपका, ये हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है और वापस लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ आपकी जो है ये लेयर आती है। तो दिस इज ये वाला चीज होता है ऐसे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। इक्वेटर में प्रेशर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है और इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक क्या करती है, एटमॉस्फेयर ट्रेवल करता है। एंड मूविंग एयर इज नोन एज विंड, और मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट डोमेन ऑफ लाइफ इज बायोस्फीयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ इज बायोस्फीयर। सो व्हाट इज बायोस्फीयर? व्हेन हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर interact with each other, that is known as biosphere. It is the narrow zone of contact between the land, water and air. जहाँ पे land, water और air तीनों साथ में मिलते हैं उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। and it is the zone of it is that zone of life where life is where life exists, जहाँ पे life exist करती है। It is unique to this planet, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास लैंड है, एयर है, वाटर है और इस वजह से हम क्या करते हैं, अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ में रह पाते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, एटमॉस्फेयर भी है यहाँ पे, हाइड्रोस्फीयर भी है, देखो रेन के फॉर्म में भी आ रहा है, लैंड भी है, लिविंग बींग्स भी है। तो ये सब क्या है, ये बायोस्फीयर है और ये सारी चीजें जब आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। लिविंग कंडीशंस जो है वो बनती है, लिविंग कंडीशन सूटेबल बनती है। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर जब इंटरैक्ट करते हैं तो इट क्रिएट्स इट बिकम्स बायोस्फीयर, ठीक है। और बायोस्फीयर हमारी लिविंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Species of organism that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms, including humans, are linked to each other and to biosphere for survival. We all are interdependent and interrelated to each other. There are so many microorganisms, bacteria, so many animals are there, so many plants are there, human beings are there. We all are interrelated and interdependent on each other. ठीक है। The organism in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. So the three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. अब देखिए जितने भी बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग बींग्स हैं हमने उनको टू काइंड्स में डिवाइड कर रखा है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में हमने उनको डिवाइड कर रखा है। और जब भी ये तीनों डोमेन्स इंटरैक्ट करते हैं तो हमारी लाइफ को कहीं वो इफेक्ट करते हैं। जैसे कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुल और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। अब देखिए हम अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए ट्रीज को कट करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए हम ट्रीज को लैंड को क्लियर कर रहे हैं, तो इससे क्या है बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से काफी जैसे नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड्स हो गया, तो काफी चीजें चेंज हो जाती है। There could be submergence of land as happened in the case of tsunami recently. क्लास 2004 में एक सुनामी आया था, बहुत ही बड़ा टाइडल वेव था और उसके वजह से क्या हुआ था, इंदिरा पॉइंट जो इंडिया का सबसे फर्दर मोस्ट पॉइंट था, लैंड पॉइंट था, वो क्या हो चुका था, डूब चुका था। सबमर्ज का मतलब क्या होता है, डूबना होता है, और वो डूब चुका था अंडमान एंड निकोबार में। सो ये केस भी हुआ था। डिस्चार्ज ऑफ वाटर इनटू मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज। एज यू ऑल नो वी हैव अ वेरी little amount of fresh water available for the consumption, and उसमें भी क्या हो रहा है कि बहुत सारे वेस्ट मटेरियल और केमिकल्स को हम क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, जिससे कि जो रिवर वाटर है वो अनसूटेबल हो रहा है हमारे लिए। ये बहुत हमारी लाइफ को क्या कर रही है, ये हमारी लाइफ को डैमेज कर रही है। एमिशंस का मतलब क्या होता है, मतलब कि निकालना, ठीक है। एमिशंस जो भी केमिकल्स होते हैं जो जिसे हम इंडस्ट्रीज से निकालते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एमिशन। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। ऑब्वियसली जो भी धुआं आ रहा है, केमिकल्स आ रहे हैं, ये एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। जो चिमनी से निकल रहा होता है केमिकल वाला धुआं, या आप गाड़ी चलाते हैं, कार चला रहे हैं तो पीछे से जो धुआं निकलता है, तो
it is so harmful for our environment, हमारे environment को बहुत ज़्यादा affect कर रही है. Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2. CO2 is the short, you can say chemical formula, short formula बोल दीजिए कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट में CO2 लिखते हैं. तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, बट अगर उसके अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा तो ग्लोबल टेम्परेचर, क्योंकि CO2 ही हमारे अर्थ को वार्म रखता है, और अगर वो इंक्रीज होगा तो ग्लोबल टेम्परेचर, हम बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लग जाएंगे. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जब CO2 की अमाउंट जो है इंक्रीज होने लग जाती है. There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, atmosphere and the hydrosphere. If we want to balance the nature, if we want to balance the domains, nature, if we want to balance the nature between the domains, we have to balance our earth by reducing the by reducing the use of CO2 appliances, जिससे कि CO2 या फिर ग्लोबल वार्मिंग ना हो, और हमें लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर में एक बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है. So this is all about this chapter, class. Go through this chapter, read the chapter very carefully, and if you face any problem, if you are not able to find the meaning of any word, just do let me know. I will clear your doubts in my next class. Okay, so read the chapter, go through the chapter. Thank you so much for joining the class. Bye bye, take care.